Okay, good evening, everyone, and welcome to today's webinar. I am Aisha Farooq, Senior Vice President in Pakistan Society of Plant Breeding and Genetics. I'm excited to be your host for today's event. This seminar is to provide you with helpful information on scholarship and tips to apply for them successfully. We have exciting speakers who will be sharing valuable insights on how to secure scholarship for your academic pursuits. Before we begin, I would like to go over a few housekeeping items. First, please ensure that your microphone is muted throughout the session to avoid any background noise and interruptions. Secondly, we will take question and answer session at the end. So please feel free to submit your question in the chat box. Lastly, we will be sharing our recording of this webinar on our Facebook and YouTube page. Feel free to reach out to it. Next slide, please. Next slide. Now, let's begin. Today, we have a very special guest, Mr. Huzaifa Rana, who joins us all the way from Italy. Mr. Huzaifa has graduated from Agronomy Department at University of Agriculture, Faisalabad. Currently, he is doing his master's in precise agriculture from Italy. Today, he will cover about overview of scholarship in Italy, how to find scholarship, admission requirement, and documentation. And at the end, we will take question answer session. Now, Huzaifa, over to you. Thank you very much. Aisha, please let me know if I'm audible. Just confirm Yes, it, please. you're clear. Yes, we can hear Thank you. you. So before start, I would like to ask a question, like, just a minute, I'm checking my things on, and then I'll let you know. So we should keep in English, or I would suggest you to go with Urdu because most of the students are here from Pakistan, or if there is any foreigner here, please let me know because I just saw a person. फॉरनर हैं, हमें साइंटिफिक ऑफिसर ही हैं, बांग्लादेश से ज्वाइन किया है, लेकिन आई थिंक हमें उर्दू में जाना चाहिए क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है ना वो पाकिस्तानी ही है. Yeah, that's what I was saying कि अगर पाकिस्तानी ऑडियंस है तो मेरा ख्याल है कि हमें उर्दू में रखना चाहिए ज्यादा. I'm वो sorry. बांग्लादेशी हैं, उर्दू भी समझते होंगे, बांग्लादेशी हैं. बंधु भाई उर्दू समझता है? Okay, ladies and gentlemen, my name is Huzaifa, Muhammad Huzaifa Mahmood, and I'm currently studying Masters in Precision Agriculture or Precise and Sustainable Agriculture at Bologna University, Italy. And I was graduated from the University of Agriculture, Faisalabad. Here we go. I guess you can see my screen. Okay, Yes. so today we are talking about study in Italy, and especially we will focus on public universities, scholarships, bachelors and masters. Not bachelors, actually. We'll focus on masters and a little bit of PhD. So I am Muhammad Huzaifa Mahmood. Normally people call me Huzaifa Rana. And I was graduated from the University of Agriculture, Faisalabad, as I already told you, and I studied agronomy. My major was agronomy, and now I'm a teaching assistant, a tutor here at the Department of Agriculture, Departamento di Scienza Agrotecnology. तो ये इटालियन में है डिपार्टमेंट, और मैं अभी करंटली मास्टर्स ही कर रहा हूँ क्योंकि यूएफ में मास्टर्स स्टार्ट किया था, लेकिन वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड. थैंक्स टू कोविड, और अनफॉर्चुनेट आई कैन नॉट से एनीथिंग. तो उसके बाद फिर मेरा इधर हो गया था वीज़ा वगैरह, तो फिर मैं इटली आ गया था. सो टुडे वी आर फोकसिंग ऑन Italian universities
Italian education system and Italian scholarship. मेरा ख्याल था कि हम जनरल रखें स्कॉलरशिप के बारे में। हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की, हम बात करेंगे आपको स्कॉलरशिप कैसे ढूंढना है। बेसिकली हमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम स्कॉलरशिप ढूंढ नहीं पाते। सही है, तो अगर हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि हमने स्कॉलरशिप कैसे ढूंढना है या हमारे पास कुछ रिसोर्सेज आ जाएं तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। तो आज हम उस पर कुछ बात करेंगे, कुछ जनरल जो मतलब इजी टू एक्सेस रिसोर्सेज हैं उस पे जाएंगे हम। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि इटालियन स्कॉलरशिप और ये सारा सिस्टम कैसे चलता है। तो आज का एक ओवरव्यू सा है जो चीज़ों का, वो यही है कि हम लेकर चलेंगे इंट्रोडक्शन हो ही गया है मेरा हल्का फुल्का। बाकी जो है स्टडी अब्रॉड कैसे है, क्यों हमें स्टडी अब्रॉड करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, एडमिशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एप्लीकेशन, और देन स्कॉलरशिप्स वगैरह जो भी होगा हम उस पर बात करते हैं। तो ये रहा मेरा जी पुराना इंट्रोडक्शन। और उसके बाद है जी 2015 था मेरा, एंड देन आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2019। मेजर एग्रोनॉमी था। और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी और मैं वाइस प्रेसिडेंट था एग्री टूरिज्म क्लब का। इसके अलावा भी काफ़ी एक्टिव थे हम। अदर देन यूनिवर्सिटी में रहते हुए मुझे इस तरह लगता था कि जो है ना एजुकेशन मेरी सेकेंडरी प्रायोरिटी है, और ये वाली जो दूसरी चीज़ें हैं ना ये हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे जा रही हैं। तो उसके बाद फिर अभी टीचिंग असिस्टेंट हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंटरनेशनल कोर्स का जो इधर डिजिटल में है। डिजिटल हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ एग्रीकल्चर का, जहाँ फूड साइंस भी साथ ही चलती है। तो नॉर्मली हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हमारे यूएएफ में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, देन उसके अंदर डिपार्टमेंट है। तो बाहर इस तरह होता है कि आपकी एक पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर फूड साइंस भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, और कई जगह पे इन्वायरमेंटल साइंस भी होता है। तो हम ढूंढते रहते हैं तो हमें मिलता नहीं है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी समझी जाती है, और इटली की रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आई विल शो ये करंटली रैंकिंग का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसको आप ना करें। और ये रीजनल स्कॉलरशिप्स भी देती है। हमें स्टडी अब्रॉड क्यों करनी चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। और स्टडी अब्रॉड आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, तो हर बंदा ही इस वक्त इस चक्कर में है कि भाई मैं जो हूँ ना किसी तरह जिंदाबाद वाली बात बनी हुई है। तो उसके बाद आपको देखते हो जब आप स्टडी अब्रॉड पे जाते हो ना, तो मल्टी कल्चरल चीज़ें होती हैं, आपको पता चलता है, आप नई नई दुनिया देखते हो, और ख़ास करके यूरोप में आप आते हो तो आप बहुत कुछ देखते हो। सही है। और मल्टी लैंग्वेज आप एक्चुअली जो चीज़ सबसे अच्छी होती है ना, आप मल्टी लैंग्वेज आप जाते हो यूरोप में, तो हर मुल्क की यूरोप के हर मुल्क की अपनी एक ज़ुबान है, तो आप एटलीस्ट एक नई ज़ुबान सीखते हो, उसके साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आपका नेटवर्किंग होती है, ज़हन खुलता है, सारी चीज़ें। तो ये सारी अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, नाउ वी विल जंप ऑन यूनिवर्सिटीज़। ये इटली की कुछ चीज़ें हैं। इटालियन यहाँ यूरो चलता है, और इनका रिलीजियन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है इटली रहने के लिए अगर हम देखा जाए। तो अगर आप महीने में इधर आ रहे हैं, अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं भी है तो भी आप सर्वाइव कर लेते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं भी होता और आप इटली में आ जाते हैं किसी तरह पढ़ने के लिए तो आ जाते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक शेंजन कंट्रीज़ में जाने का एक होता है, तो आप पूरा यूरोप फिर सकते हैं। टूरिज़्म के हवाले से बड़ा अच्छा है। और टूरिज़्म जो है वो लोग, हम तो अभी थोड़े दिन पहले भी, मैं कल भी गया हुआ था एक ऐसे टूर पे, तो लोग कहते हैं कि यार इटली पहले फिर लो फिर यूरोप फिरते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़। तो ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है ना जो आपके सामने अभी मैंने शो की हैं, ये तकरीबन इटली की 150 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में से चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8-10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं। तो यहाँ पर मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हर शहर की एक अलग यूनिवर्सिटी है। ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए ना, ये हर एक अलग-अलग शहर की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, वेनस, नेपल्स, ये सारे अलग-अलग, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया।
तो ये मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अंदर तकरीबन ये पॉलीटेक्निक और यूनिवर्सिटीज़ निकाल के ऊपर वाली सारी यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर करवाती हैं, क्योंकि पॉलीटेक्निक की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, जिस तरह हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डिप्लोमा वगैरह देते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये उस किस्म के इंस्टीट्यूट हैं। ये मेनली फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग है, लेकिन अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग वाला है, कंप्यूटर साइंस वाला है, तो उनको डेफिनेटली ये तीनों पॉलीटेक्निक को देखनी चाहिए। ये टॉप रैंक्ड मतलब पूरी दुनिया में इनका नाम होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एडमिशन्स पे कि एडमिशन्स जो है ना, ये कैसे, आपका जो एडमिशन है ये जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने बैचलर्स के लिए एडमिशन लेना है तो हर जगह पे यही एडमिशन है कि आपकी 12 साल की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। डिप्लोमा आपका चल जाता है यहाँ पे, या ए लेवल्स है। अगर आपने मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना है तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो वो डेफिनेटली काउंट होता है। पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। ये मैं उस मास्टर्स की बात कर रहा हूँ जो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मास्टर्स है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। 16 ईयर्स के बाद 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, प्लस आपके पास होना चाहिए रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपने थीसिस किया हो, पब्लिकेशन हो, बहुत अच्छी बात है। और रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। गैप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये कोई 5-7 साल, 5 साल तक का गैप भी चल जाता है। ये नहीं है कि आप 10-15 साल का गैप लेके आ जाएं। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस पे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन बेसिकली 3 से 4 हिस्सों में आप इटली तक पहुंचते हो। प्रोसेस में 3 से 4, सबसे पहले तो आपने एडमिशन लेना होता है। ये आपके कहीं भी अप्लाई करते हैं दुनिया में, कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में, आपने यूएफ में भी अप्लाई किया था तो आपने सबसे पहले एडमिशन लिया। एडमिशन लेके फिर आपने एप्लीकेशन फ़ी दी उनको, व्हाट्सएवर जो भी 1000-2000 हमारी होती थी यूएफ में। फिर उन्होंने आपकी वैल्यूएशन की, देखा कि आपका वो टेस्ट लिया था एक, उसमें से उसके बाद आपके बैचलर्स में से आपके एफएससी में मार्क्स सारे देख के आपका एक बनता है, मेरिट बनता है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू भी लेती हैं। पॉलीटेक्निक को यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो कुछ कोर्सेज़ में इंटरव्यू भी लेती हैं। उसके बाद आपकी होती है प्री इनरोलमेंट। प्री इनरोलमेंट ये पोर्टल है, वेबसाइट यूनिवर्सिटी इटली का। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को मिलाती है आपस में, सही है? तो इस पे जाके आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है, एंड देन यू एंटर इनटू वीज़ा प्रोसेसिंग। और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और उसके लिए आपको साथ में वीज़ा और डीओवी होती है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के। एम्बेसी ये डिक्लेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स कि आपने जो बैचलर्स किया है पहले पाकिस्तान में, वो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स करने के लिए इनफ है, एलिजिबल है कि नहीं। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एम्बेसी आपको बताती है। और देन फिर हम अप्लाई करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स पे, जिसको लेकर कहते हैं कि इटालियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री पढ़ाती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, फ्री एजुकेशन है यहाँ। उल्टा ये आपको पैसे देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, खाने के भी पैसे देते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे, रीजनल स्कॉलरशिप पे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड देन हाउ रैंकिंग वगैरह कैसे बनती है इसकी। तो ये रहा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन इसका। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले लें। ये वाले डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, ये दुनिया की हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में यही डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी। इटली में नहीं, आप कहीं भी अप्लाई करेंगे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। तो बेहतर है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपकी मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, डॉक्यूमेंट्स आपके ये बोर्ड और आईबीसीसी दोनों से अटैच होने चाहिए। तो अगर आपने आईबीसीसी से अटैच करवानी है तो आपको पहले अपने बोर्ड में जाना पड़ेगा, उनको जाके आपने बताना है कि मैंने आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी है। वो अपनी अटेस्टेशन फ़ीस लेंगे, फिर आप आईबीसीसी जाएंगे, उनको आप अटेस्टेशन फ़ीस देंगे, तो आपकी इस तरह अटेस्टेशन होगी। देन आपकी बैचलर्स है, बैचलर्स यूनिवर्सिटी से आपको पहले लेनी होगी। आई डोंट नो कि अब यूनिवर्सिटी वाले अटेस्टेशन भी कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब मैंने किया था कोविड था चल रहा, तो तब अटेस्टेशन तो यूनिवर्सिटी ने नहीं की थी। लेकिन जो है ना एचईसी से अटेस्टेशन करवाई थी, फिर बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी आपने यूनिवर्सिटी से लेनी है। रिकमेंडेशन लेटर्स कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप अपने सुपरवाइज़र से मेक श्योर करें कि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं
तो एटलीस्ट 2 से 3 आपके डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके जो सुपरवाइज़र हैं और आपके जो को सुपरवाइज़र हैं एटलीस्ट वो इस काबिल हों कि आपको रिकमेंड कर सकें। सही है, ये नहीं है कि आपने उनके साथ बिगाड़ी हुई है, कल को आपको ज़रूरत पड़ती है, वो ईमेल का जवाब ही नहीं देते, आप उनको मैसेज करते हो, कॉल करते हो एंड दे डोंट गिव अ शिट। तो ये आपने करना है, इससे बचना है। मोटिवेशनल लेटर आपने लिखना है, वो आपको बताऊँगा मैं कैसे लिखना है। रिसर्च प्रपोज़ल वो हम देखेंगे कैसे लिखना है एंड देन सीवी। तो यूरोपा सीवी बेसिकली चलती है यूरोपीय यूनियन में तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, और इसका काफ़ी फ़ायदा और भी होता है। और अगेन पासपोर्ट और फ़ोटो, तो पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एडमिशन। अभी हमारा एडमिशन हुआ है, यानी अभी हम इस प्रोसेस में हैं, पहले प्रोसेस में एडमिशन के। देन वी विल डू प्री एनरोलमेंट एंड देन वी विल गो टू वीज़ा एंड डीओबी। तो ये वाले इटालियन एम्बेसी के जो रिक्वायरमेंट है, ये उसके मुताबिक हैं डॉक्यूमेंट्स कि आपने पहले वीज़ा फॉर्म, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी प्री एनरोलमेंट हो जाएगी, आपकी प्री एनरोलमेंट एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाएगी। यूनिवर्सिटी थ्रू दैट पोर्टल एम्बेसी को आपकी प्री एनरोलमेंट भेज देगी। देन यू विल बी एबल टू गो फॉर वीज़ा। इसमें आपकी फ़ोटोज़ होंगी, एडमिशन लेटर होगा। अब यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन लेटर्स देना बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी दे देती हैं एडमिशन लेटर और प्री एनरोलमेंट समरी, वो इसी को एडमिशन लेटर कहती हैं। फिर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे आपने टेस्ट करवाए हैं, एम्बेसी में जाने के लिए आपको मोफा से अटेस्टेशन भी करवानी है। मोफा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इस्लामाबाद में है ये, सेरीना होटल की बैक साइड पे बिल्कुल करीब। और फिर आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांसलेशन करनी है इटालियन में डीओवी के लिए। देन आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। तो ये जो स्कॉलरशिप की बात की है, रीजनल स्कॉलरशिप, ये बेसिकली इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। जिस तरह हम एचईसी का या पीफ का हम स्कॉलरशिप यूएफ में अप्लाई करते हैं, जो कि मेरिट्स कम इनकम बेस ज़्यादा होता है, जिसे नीड बेस कहते हैं, ये एक किस्म का नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। तो स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप एफिडेविट हमने उनको देना होता है, हमने उनको बताना होता है कि भाई कोई बंदा हमें स्पॉन्सर कर रहा है हमारा वीज़ा। और उसके बाद हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो तकरीबन 6 साढ़े 6,000 यूरो की हमें बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 6,500 यूरो, मतलब तकरीबन 2 मिलियन बन जाता है पाकिस्तानी। तो इतने जो पैसे हैं, हमने उनको बताना है कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसके लिए हमें सोर्स ऑफ इनकम उनको देना पड़ता है, हमने उनको बताना होता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और ये अभी मैं बात कर रहा हूँ रीजनल स्कॉलरशिप्स की, ठीक है। उसके बाद हमने उनको बताना होता है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से हमने पैसे लिए हैं, इनकम कमाई है, वो हम उस पे टैक्स भी देते हैं, ठीक है। टैक्सेशन का बाकायदा एक उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि इटालियन और यूरोपीय यूनियन में इधर टैक्सेशन पे बड़ा फोकस किया जाता है। देन आपके पास आइल्ट्स होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो पिछले साल और इस साल भी एम्बेसी ने आइल्ट्स जो है वो ख़त्म कर दिया था। आई डोंट नो अब लेटेस्ट जो 2023 के एडमिशन जब अभी स्टार्ट हैं, तो जब ये वीज़ा तक हम पहुंचेंगे तो आइल्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो जो भी लेटेस्ट होगा आपको वो देखना पड़ेगा। एंड देन फॉर वीज़ा एप्लीकेशन यू हैव टू टेल देम अबाउट योर बोर्डिंग लॉजिंग, के आपके पास है, कहाँ जाके रहेंगे, कैसे जाएंगे, टिकट वगैरह करवा लिया है, इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी। यूरोप में इंश्योरेंस का बड़ा काम होता है, तो इंश्योरेंस होनी चाहिए। एंड देन यू पे योर वीज़ा फ़ी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि कैसे प्रोसेस चलता है किसी भी मुल्क में कहीं पे भी जाने के लिए। मोर और लेस यही तरीका होता है। आप पहले एडमिशन लेते हो, फिर आप अटेस्टेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स करते हो, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास स्कॉलरशिप्स जो हैं, क्योंकि बेसिकली हमने फोकस जो करना है वो स्कॉलरशिप पे करना है। तो इटली में बेसिकली तो
2 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं पाकिस्तानियों के लिए, 2 से 3 किस्म के, तीसरा इतना नहीं है। तो हम फोकस करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप। अब दुनिया की हर एक यूनिवर्सिटी में तकरीबन, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होता है। सही है, मेरिट बेस्ड, वो जनरल स्कॉलरशिप नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होता है। आप डायरेक्ट उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं अगर आपकी बहुत अच्छी सीजीपीए है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, और वो आपको डिपार्टमेंट भी दे सकता है, वो आपको यूनिवर्सिटी भी दे सकती है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे चल के। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में अगर हम इटालियन मेरिट बेस्ड की बात करें, मेरिट बेस्ड की बात करें, तो वो फी वेवर आपको देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, और फूड भी कवर हो जाता है आपका। और इसी तरह रीजनल स्कॉलरशिप जो आपको मैंने बताया था कि इनकम बेस्ड है, तो इटली में 20 रीजन है, 20 रीजन्स, देयर आर 20 रीजन्स, 20 सूबे आप उनको कह लें, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के 5-6 बने हुए हैं। तो मेरिट बेस्ड है, और मेरिट मतलब देखते हैं ये मेरिट भी, लेकिन इन्होंने अपना मेरिट बहुत कम रखा होता है नॉर्मली। फी वेवर इनकी भी होती है, अकोमोडेशन भी होती है, स्टाइपेंड भी इनका होता है, फूड भी इनका होता है। तो अगर आपकी बहुत अच्छी सीजीपीए नहीं है, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है, वीज़ा भी हो जाता है, तो आप रीजनल स्कॉलरशिप पे आराम से सेम वही कुछ इंजॉय कर सकते हैं जो आप मेरिट बेस में इंजॉय कर रहे होंगे चीज़ें, वही कुछ आप यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड देन वी हैव पीएचडी। तो पीएचडी जो है, ये एक किस्म की फुल टाइम जॉब होती है यहाँ, और इसकी पे जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 1200 यूरोज टू 3000 यूरोज। तो 1200 तो बिल्कुल बेसिक है, अब बल्कि ये भी 1400 हो गई है आई गेस। तो अगर 1400 यूरो भी हो, तो वो पाकिस्तानी जो है ना, आजकल के रेट पे तकरीबन 3 लाख के करीब चली जाती है। तो ये ओवरव्यू है स्कॉलरशिप्स का, एंड देन वी विल सी कि हमें ये स्कॉलरशिप्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे देखने हैं, एंड देन वी विल गो इनटू फर्दर। तो उसके लिए अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं यहाँ तक की चीज़ों के बारे में, कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो यहाँ तक जो हमने देखा है वो हम पूछ लेंगे, कोई किसी को मसला तो नहीं। काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। हाँ, हैंड रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया 2 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे, मेरिट बेस और रीजनल स्कॉलरशिप। काइंडली बताइएगा कि आइट्स इन दोनों के लिए चाहिए, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि यार जैसे हमने जी जी आइट्स अगर आइट्स को मैं स्कॉलरशिप के लिए नहीं लेता। आइट्स जो है ना, वो एडमिशन और वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, स्कॉलरशिप का आइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके ओके। और दूसरा, जैसे हमने बताया रीजनल स्कॉलरशिप के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, तो क्या मेरिट स्कॉलरशिप के लिए भी हमें शो करनी पड़ती है? नहीं, मेरिट स्कॉलरशिप के लिए नहीं करनी पड़ती, लेकिन ओके डिपेंड करता है। नॉर्मली इस तरह होता है कि काफ़ी मेरिट स्कॉलरशिप्स जो है ना, वो उतने नहीं होते शुरू में, कि वो आपका पूरा कवर कर लें। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ, अगर आपका मेरिट स्कॉलरशिप कम मिला हुआ है, तो वो करनी पड़ती है। ओके, शुक्रिया। ये आई डोंट नो। हम आ रहे हैं भाई, उमर रशीद, हम आगे चलते हैं उस पे। अभी ये जो क्वेश्चन एक आया हुआ है मुझे रिटर्न में इधर, मिस्टीरियस, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। तो आप काइंडली लिखेंगे यहाँ के फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप से क्या मुराद है, या आप अपना माइक जो है वो ऑन करके बताएं कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप से आप क्या मुराद ले रहे हैं। यस सर। फुली फंडेड स्कॉलरशिप किस तरह के होते हैं? वो क्या फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकता है? भाई फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इस तरह के होते हैं कि वो जो है ना, पाकिस्तान आते हैं, वो इटली से पाकिस्तान आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है ना तशरीफ लाएं हमारे पास। यार ये जो अभी मैंने आपको इतने फायदे बताए हैं, आपकी फी वेव होती है, आपको अकोमोडेशन मिलती है, आपको फूड मिलता है खाने के लिए, आपको रहने की जगह मिलती है, आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं होता, ये फुली फंडेड नहीं है तो और क्या है। तो
मैं इसको हमजा को पता है, मैं असल में गया हुआ था, मिलान गया हुआ था, तो उधर यही डिस्कशन चल रही थी। स्टूडेंट्स जो है ना वो कैन वी अप्लाई इन 8th semester without final transcription? Yes, you can apply, but you have to give them your diploma and your transcript before I guess 10th of October. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली हमें पहले जो वीज़ा प्रोसेस है और जो आपने अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बताई है, पहले हमें वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद हम कोई स्पॉन्सरशिप के लिए करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप आपने बताई है फुली फंडेड वाली? जी आपको पहले एडमिशन लेना होता है, जी सर। और एडमिशन लेके फिर आप जो है ना अप्लाई करते हैं। कोई भी जो भी आपने चीज़ें करनी है वो एडमिशन के बाद तो होती है। सर अगर हमने यूनिवर्सिटी अप्लाई भी कर लिया, हमारा वीज़ा प्रोसेस भी हो गया, तो हमारी अगर फुली फंडेड नहीं लगती या स्पॉन्सरशिप हमें नहीं मिलती, कोई भी स्कॉलरशिप, तो फिर क्या करते हैं, उसका हल है? तो अगर आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं लगती तो आपने स्कॉलरशिप नहीं लगती तो आपने वीज़ा में ऑलरेडी एम्बेसी को बताया हुआ है ना कि हमारे पास फंड हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए। जी सर। ठीक है, तो आप अपने फंड्स पे रहेंगे वहाँ। उस दौरान भी इधर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, यूनिवर्सिटी खुद जॉब देती है, जिस तरह मैं अभी यूनिवर्सिटी में इस तरह जॉब कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जॉब देती रहती है, आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद फिर सेकंड ईयर जब आता है तो उन्होंने मेरिट रखा होता है, आपने उस मेरिट पे पूरा उतरना होता है, तो फिर आप सेकंड ईयर से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सर अगर हम अपने पेपर जाएं तो हमें कितनी इसके लिए फी रिक्वायर होती है, या कितनी हमारे पास इनकम होनी चाहिए जो हम उन्हें शो अप तो करवाएं? अभी तो मैं बताकर हटा हूँ ये, जी, अभी वो तो आपने बताया। बैंक स्टेटमेंट का बताया है ना? जी बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, वो 20 मिलियन की तकरीबन अभी देख लें आज के रेट में, मैं अगर देखूँ तो 65 यूरो टू PKR अगर हम करते हैं तो ये तकरीबन 19 लाख 20 लाख आप कर लें इसको, 19.5 लाख बन रही है, तो ये 2 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। चले, थैंक यू सर। ओके कैन वी ओके ये हो गया है यूएसए का। यूएसए पे हम फोकस नहीं कर रहे ब्रो, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो यूएसए का है, तो आप फुल ब्राइट के लिए उनकी वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। फुल ब्राइट आई गेस ओपन है, आया हुआ था, इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आई हुई थी। Assalamu alaikum, sir. First of all, thank you so much for this wonderful session. Sir, my name is Umar. Sir, मैंने ग्रेजुएट बॉटनी के अंदर, तो मैंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में अप्लाई किया था, तो मेरा मास्टर प्रोग्राम इन एग्री फूड सस्टेनेबिलिटी में एडमिशन हुआ है। तो सर अब मैंने प्री एनरोलमेंट अभी ओपन होने वाली है, तो अब प्री एनरोलमेंट करूंगा। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि यूनिवर्सिटी ने डिमांड की है कि या तो डीओवी सबमिट करवा दें या सीमिया सबमिट करवा दें एनरोलमेंट पे। सर जो एनरोलमेंट है वो मई के अंदर है, तो सर क्या मैं डीओवी के लिए पहले अप्लाई कर सकता हूँ? अभी मैं डीओवी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या सर मैं सीनियर? आप हो कहाँ से, आप हो कहाँ से, पहले मुझे आप ये सर बताओ। मैं गुजरांवाला से, जी नहीं, पंजाब से आप नहीं बिलोंग। कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपको डीओवी तब आप करोगे अप्लाई जब आप वीज़ा के लिए एम्बेसी जाओगे, तो तब आप साथ डीओवी अप्लाई करोगे। तो बेहतर ये है कि अपना टाइम बचाओ और वहाँ पे जो है ना सरदर्दी बचाओ, तो आप सीमिया के लिए अप्लाई कर लो ऑनलाइन। उसकी मेरा ख्याल है 120 यूरो फीस है। तो आपने पूरा सीमिया करवाना है, स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन भी करवानी है और स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी, दोनों स्टेटमेंट्स लेनी है उनसे। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर मुझे काइंडली ये भी बता दें कि जो सीमिया जो है वो यूनिवर्सिटी बना के देगी ना, यूनिवर्सिटी के लिंक से ही होगा ना? नहीं 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 नहीं, ये सेमिया जो है वो एक अलग से बॉडी है, वेरिफिकेशन वाली बॉडी है, जिस तरह हमारी HEC एक बॉडी है, इसी तरह उनकी एक बॉडी है। उनकी वेबसाइट पे आप जाके अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर सारी आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उनको फीस देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और सर एक बात बस ये भी बता दें, जैसे आपने बताया कि 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है, एक रीजनल स्कॉलरशिप होती है और एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। अब जो मेरी यूनिवर्सिटी है सर वो सिर्फ जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप दे रही है, यानी नहीं मेरिट नहीं बेस्ड। नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में पाविया में होगा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, हर यूनिवर्सिटी में है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। यू नीड टू रिसर्च ऑन देयर वेबसाइट। आप उधर जाके थोड़ा सा टाइम लगाएं, वेबसाइट पे होगा पाविया पे, या किसी पाविया के सीनियर कोई बंदा वहाँ पढ़ रहा है उससे एक दफ़ा कंफर्म करें। मेरे ख्याल में तो है वहाँ, क्योंकि वरना भी हम देख लेते हैं, अभी हम स्क्रीन शेयर करके गूगल पे जाकर देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सर एक्चुअली इधर जो है ना कुछ सब्जेक्ट के सिर्फ जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं मेरिट बेस,
जैसे कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के, इसमें एग्री है फूड ना, स्कॉलरशिप तो है ना, मेरिट बेस तो है ना स्कॉलरशिप। अब यू हैव टू फिगर इट आउट कि वो आपके कोर्स में है या नहीं। बाहर स्कॉलरशिप है, ये मुझे पता है। नहीं है। सर मुझे बस ये बता दें कि सर अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त गया, उसका इंजीनियरिंग में था, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे गया है, तो वो मुझे कह रहा था कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो तो फिर आपका वीजा की रिजेक्शन नहीं होती। तो सर क्या ये जी सर, तो मैंने ये सर बात ये दुरुस्त है। जी, तो सर मुझे ये ये भी बात बता दें, तो रीजनल स्कॉलरशिप अगर हमें मिल जाती है तो वो क्या एम्बेसी को हमने शो करवाना है? वो कह रहा था कि एम्बेसी को आपने शो नहीं करवाना, अगर आप एम्बेसी को शो करवाओगे तो आपका जो वीजे लगने के जो चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप के पास स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड भी है, रीजनल भी है, आप रीजनल अगर है तो थोड़ी सी साथ बैंक स्टेटमेंट लगा लें, इजी होके करवाएं, कोई मसला नहीं होता। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी देख रहा हूँ मैं इधर क्वेश्चन, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट एक्सप्लेन कर दें। आमना का ये क्वेश्चन है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट इफ शी इज हेयर। एफिडेविट वो होता है कि आपके बिहाफ पे जो भी आपका स्पॉन्सर है, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, बहन हो सकती है, भाई हो सकती है, जो ब्लड रिलेशंस हैं, वो ये स्पॉन्सरशिप लेटर बनाते हैं, एफिडेविट देते हैं एम्बेसी को कि भाई हम इस बंदी के गार्डियंस हैं, वालिदैन हैं, भाई बहन, गार्डियंस हम कह लेते हैं, और हमारे पास ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे पास इतना इतना सब कुछ है, तो हम वेल ऑफ हैं, फैमिली से हैं, और हम अपने बच्चे की इटली में जो एजुकेशन है उसका खर्चा उठाएंगे। दैट्स इट। ये चीज़ें लिखनी होती हैं बस उसके अंदर। ये वो आप उर्दू में सॉरी रहने दें, आप इंग्लिश में लिख लें। तो ये सारी चीज़ें स्पॉन्सरशिप लेटर होता है बस, कि हमारे पास हम इस बच्चे का ये लगते हैं, ये हमारा बेटा है, हम इसके वालिदैन हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, इतनी इतनी हमारी इनकम है, बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है, हमने सबमिट करवाई जो है, और हम इसका इटली में खर्चा उठाएंगे। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंस में अप्लाई फॉर मास्टर्स। हाँ, यहाँ मास्टर्स होते हैं वेटरनरी साइंस में, लेकिन इस तरह नहीं है, DVM के नाम से कोई डिग्री नहीं होगी आपको। मे बी एनिमल न्यूट्रिशन में मिल जाए, या एनिमल मेटाबॉलिज्म की एक डिग्री है उसमें मिल जाए, या आपको माइक्रोबायोलॉजी में या इस तरह की डिग्रीज आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप प्रूफ, स्पॉन्सरशिप, ये सभी कुछ बता के तो हटाऊँ। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप प्रूफ आपका FRC होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको नादरा से मिलता है, उसके अंदर आपके सारे फैमिली मेम्बर्स के सारी डिटेल्स होती हैं। वो आपका ये PT वाला कोई चक्कर नहीं है इधर भाई मोहसिन अली। और इट इज़ पॉसिबल टू गेट, व्हाट इज़ पॉसिबल टू गेट बिफोर 10th अक्टूबर इन UF, आई डोंट नो ब्रो। अगर आप मास्टर्स की बात कर रहे हैं या बैचलर्स की बात कर रहे हैं, आई गेस अगर आप बैचलर्स में हैं तो आपका हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में, आपका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। और मास्टर्स डिपेंड करता है आप कब वाइवा देते हैं और आप कब एंड पे अपना सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, तो इट्स अप टू यू। बैचलर्स का हो जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान यूनिवर्सिटी डिग्री कन्वोकेशन नहीं, वही मोहम्मद अवैस समझा, तो डिग्री जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है। अभी परसों जो हुआ है कॉन्वोकेशन, वो हमारा भी कॉन्वोकेशन था, मैं भी उसमें, मुझे भी मिलनी थी डिग्री, लेकिन मैं तो 2 साल पहले डिग्री लेके आ चुका था यहाँ, 2020 में मैंने डिग्री ले ली थी, इसमें वो कोई नहीं होता। आप 1 महीना ठहर के आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, आपको डिग्री मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। नहीं सर, कोई नहीं बना सकता उसामा वहीद, और आइल्स ज़रूरी है वीज़ा के लिए, आप इसको ज़रूरी ही समझें, ज़रूरी ही समझें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हम होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हैं इटली में? बिल्कुल आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम अक्टूबर तक उनको अपनी डिग्री देनी है। और अगर आपका अक्टूबर से पहले वीज़ा की अपॉइंटमेंट किसी तरह आ जाए और आपके पास डिग्री नहीं है, तो फिर आपका काम खराब हो सकता है। सर ये यूनिवर्सिटी जो UAF है, ये कितने टाइम बाद हमें डिग्री दे देती है आफ्टर सर बैचलर? ये आप ना यूनिवर्सिटी से पूछना है, आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम तो 3 साल हो गए हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ दी है हमने, तो मे भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर हुआ होगा, प्रोसेस सिस्टम बेहतर हुआ होगा, लेकिन शायद ना भी हुआ हो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। सर मैक्सिमम 2 मंथ लगते हैं। हाँ, डिग्री देने में तो इतनी देरी लगती है। नहीं सर, ये UF की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे कर देते हैं, मैक्सिमम 2 मंथ तक ले जाते हैं।
आयशा मोहम्मद अली, आई डोंट नो एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। मैं तो इस तरह थोड़ी किसी को बता सकता हूँ कि आपका एडमिशन हो जाएगा नहीं होगा पीएचडी में। पीएचडी सोनली बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल, योर मोटिवेशन एंड योर रिसर्च प्रपोजल। सो अभी हम देखते हैं इसको आगे, जब भी मैं शेयर करता हूँ दोबारा स्क्रीन, एंड देन वी विल सी समथिंग मोर। सर बस ये बता दें काइंडली कि सर मेरा आइट्स में ना 5.5 बैंड है, यानी B2 लेवल, तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी 5.5 ही थी। तो सर यार क्या मैं आपने बैचलर्स कर लिया हुआ है? जी सर मैंने कर लिया है। तो सर क्या मैं दोबारा आइट्स करूं कि यही मेरा बिल्कुल, चल जाएगा? आप बैचलर्स करके यार 16 साल की एजुकेशन लेकर आप 5.5 लेकर आ रहे हो, ये तो अफसोस वाली बात है, सॉरी टू से, बट आपको तो 7.5 एटलीस्ट फोकस करना चाहिए। 7.5 पे फोकस करोगे तो आपका 7 तक जाएगा। सर वो मेरा बाकी सब में ठीक है, स्पीकिंग में भी ठीक है, बस एक्चुअली रीडिंग में मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो वो मेरा 5 आया, जिसकी वजह से वो ओवरऑल खराब हो गया बैंड। चलें अभी हम, आप इसको अगर हो सकता है तो इम्प्रूव कर लें, वरना जो है 5.5 इट्स अ नेगेटिव थिंग फॉर समवन हु इज गोइंग टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही है कि आप एक मतलब 16 17 18 साल की एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और आप इतना लो स्कोर लेकर आ रहे हैं, तो आइल्स को मुश्किल नहीं है यार। मैंने 2020 में किया था जब कोविड में आ रहा है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मुश्किल है, दो हफ्ते तैयारी की थी बस, तो मेरे तो अच्छे आगे थे बैंड। तो आई डोंट नो, बट हर बंदे का अपना सिस्टम होता है। सो लेट्स जंप इनटू अ प्रैक्टिकल थिंग, हाउ टू सर्च द कोर्सेज। आपने कोर्सेज कैसे सर्च करने हैं अपने, उसके लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, यूनिवर्सिटी इटली। ये आप रखें सामने अपने, इसको नोट कर लें वेबसाइट को, यूनिवर्सिटी इटली पे आपने कोशिश करनी है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का कोई ऐसा पोर्टल, नॉर्मली यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके पोर्टल्स इस तरह के होते हैं जहाँ पे सारी उनके कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब ये वाला जो है ना कोर्स, यहाँ पर सारे कोर्स इनके अवेलेबल हैं, और यहाँ से मैंने इसको इंग्लिश कर लिया वेबसाइट के ऊपर से, और यहाँ हम आते हैं कोर्सेज इन इंग्लिश। तो ये देखें जी, ये कोर्सेज हैं हमारे पास इस वक्त पूरे इटली के अंदर जितने कोर्सेज इंग्लिश में यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, वो रहे ये सारे, और ये तकरीबन तकरीबन हैं, यहाँ से हम देखते हैं 595 डिग्री कोर्सेज हैं, यानी 600 के करीब कोर्सेज हैं इन 62 यूनिवर्सिटीज़। तो इतने कोर्सेज जो हैं ना ये यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। तो अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि या तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 बाय 1 इस तरह इसको करके देख लें, नहीं तो आप कंट्रोल F करें। और हम बात करते हैं प्लांट साइंस की, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट की हम बात करें, हमारे पास प्लांट साइंस का मिलानो में है एक कोर्स प्लांट साइंस के नाम से। देखो एक एक कोर्स है सिर्फ हमारे पास, और ये भी बॉटनी से रिलेटेड कोर्स है, नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के इसके थोड़े कोर्सेज हैं, ज़्यादा इसके जो अंदर पढ़ा रहे हैं वो बॉटनी है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ये रहा जी, एग्री आइडियाज़ के नाम से कोर्स है, ये रासमस मंडस का हिस्सा है। एग्री के हमारे पास प्रिसाइज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये मेरा कोर्स है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ये नया ही कोर्स खुला है। फूड इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये पादवा यूनिवर्सिटी में है। और उसके बाद हम बात करें एग्री फूड सस्टेनेबिलिटी, ये भाई बात कर रहा था पाविया में, इसका एडमिशन हुआ है उसमें। देन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो पीबीजी वाले। सही है, ये पेरूजिया यूनिवर्सिटी बड़े अच्छा शहर में है और प्यारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, और यहाँ भी रीजनल स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप यहाँ फोकस कर सकते हैं। एग्री फूड इनोवेशन मैनेजमेंट, ये भी अच्छा कोर्स है, ठीक है। देन एग्री फूड सिस्टम आइडियाज़, तो ये जो कोर्सेज हैं ये एग्री के आगे। हम अगर बात करें एनवायरनमेंट के, ENV अगर हम लिखते हैं तो एनवायरनमेंट के ये देखें 22 कोर्सेज हैं। तो
22 कोर्सेज में से आप एग्रीकल्चर वाले, मतलब हम सभी एग्रीकल्चर वाले हैं, तो मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंटल साइंसेस की एडमिशन्स हो गया था। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, अगर आपको थोड़ा सा आप चेंज करना चाहते हैं तो। जियो इन्वायरमेंटल रिसोर्स एंड रिस्क, अजीबोगरीब नाम भी आते हैं कुछ। सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल चेंज, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्लाइमेट चेंज वगैरह का ना जो कोर्सेज हैं ये इस तरह के हैं। मैनेजमेंट ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट, बायोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, लेकिन नाम मतलब ये वही क्लाइमेट चेंज का कोर्स है। एंड वी कैन अप्लाई फॉर दिस नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में आपको पता है आजकल बात चल रही है रिजिलियंट एग्रीकल्चर की। तो हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि भाई साहब हम एग्रीकल्चर को, हम क्रॉप्स को रिजिलियंट बनाना चाह रहे हैं क्लाइमेट, तो आप यहाँ जा सकते हैं आराम से इस तरह के कोर्सेज में भी। देन यहाँ पे कोर्सेज होते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ये देखें कोर्सेज हैं, नेचुरल रिस्क असेसमेंट है, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज जो हैं नेचुरल रिस्क वाले, आप सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इटली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सारे कोर्सेज इन्होंने एक जगह पे रखे हुए हैं, आपको कोई भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट यहाँ से कोर्स ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे स्कॉलरशिप की तरफ। यहाँ से हमने कोर्स ढूंढ लिया, अब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ किया जी हमने कोर्स ढूंढ लिया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही है जो मैं मसलन पढ़ रहा हूँ, जो प्रिसाइज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपने यहाँ क्लिक करना है कोर्स वेबसाइट पे, ये डायरेक्ट आपको कोर्स की वेबसाइट पे ले आता है। ये रहे जी, ये कोर्स की वेबसाइट, और यहाँ से आपने आराम से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये तकरीबन कुलिया आपको सारे इटली के सारे कोर्सेज में लगा सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ से छोड़ के प्रिसाइज सस्टेनेबिलिटी, हम कटानिया में चले जाते हैं, या हम सस्टेनेबल फ्रेंजे में चले जाते हैं, एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। ये देख कोर्स वेबसाइट आ गई। तो ये रहा आपका सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स, और ये रहा था मेरा। तो मुझे डायरेक्टली कोई भी इस तरह का काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मैंने वेबसाइट पे गया, वहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास कोर्स आ गया। यहाँ से सबसे पहले आपने ये देख लेना होता है कि इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी है, तो ये इंग्लिश में है। तो हम अगर बात करें दूसरे की, कोर्सेज एंड सिलेबस, तो ये देखें ये आपको इंग्लिश में भी मिल रहे हैं, इटालियन में भी मिल रहे हैं। तो ये मे बी कोर्स हों कुछ जिससे हम कह दें, हम आ जाते हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड। ये देखें फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कोर्सेज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड सॉइल साइंस, स्टैटिकल मेथड फॉर द एनवायरमेंटल रिसर्च। तो इस तरह के कोर्सेज जो है ना आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, तो आपने ये देख लेना, पहले चेक कर लेना। यहाँ पे एक तरीकाकार तो ये है, डायरेक्ट तरीकाकार जो यहाँ से आपको यहाँ तो ले आओ, आप आराम से कर लो। सेकंड जो आपको है, आप करें चेक कर लें जी, ये पीएचडी वालों के लिए भी है, जो आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी है। आप लिखें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इटली, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इटली लिखा, ये आपके पास लिस्ट आ गई। ये तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ उसने शो कर दी हैं, सही है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। उडबीनो, फोजा, खालकरी, फोजा में पाकिस्तानी काफ़ी हैं, यूएफ के काफ़ी हैं, ससारी में हैं, यूएफ के वेरोना में आ चुके हैं। ये सारी नापोली, वीनस, नेपल्स, तो ये सारी हैं, सही है। तो जो टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यही हैं, सपिएंजा रोमा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, पादुआ है, बोलोनिया यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पीज़ा। ये सारे शहरों के नाम हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं। यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और कोई आप यूनिवर्सिटी उठा लें जी। हम अब पहले हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान को देखा, हम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस उठा लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस देख लिया,
तो यहाँ से ही हम, वेबसाइट नहीं आ रही, यहाँ से हम विकिपीडिया से होकर इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। यूनिफी इसका नाम है जी, ये रहा जी, ये हमारे पास यूनिफी आ गया। अगेन आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। अगर नहीं हो रहा तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन आप आते हो यहाँ प्रोग्राम्स में, या एजुकेशन लिखा होता है, ये देखें लिखा हुआ है प्रोग्राम्स हेल्ड इन इंग्लिश, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब फर्स्ट साइकिल डिग्री होता है बैचलर्स डिग्री, सेकंड साइकिल होता है मास्टर्स डिग्री, और थर्ड साइकिल होता है या रिचर्का या डॉक्टोरातो होता है पीएचडी। तो ये साइकिल वाइज चलते हैं, इनका सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। 38 साइकिल मतलब एकेडमिक ईयर के हवाले से। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेकंड साइकिल, क्योंकि हम मास्टर्स को देख रहे हैं, तो ये वाले जो सेकंड साइकिल के मास्टर्स हैं ये सारे इंग्लिश में हुए हैं, मतलब होते हैं। तो LM हम देख लेते हैं 69, तो ये इनका क्लासेस हैं इटालियन गवर्नमेंट की, लॉरा मैजिस्ट्राले इसे बोलते हैं, यानी मास्टर्स डिग्री, और ये एग्रीकल्चर में है। तो 69 के जितने भी कोर्सेज होंगे LM 69 के, वो सारे एग्रीकल्चर के कोर्सेज होंगे। आपको यहाँ से कंफर्म कर देते हैं, हम कंट्रोल F पे जाते हैं, LM.69। तो ये देखें टोटल जो है LM.69 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 8 कोर्सेज जो हैं वो एग्रीकल्चर की क्लास में हो रहे हैं। तो ये क्लासेस होती हैं, आइडियाज़ का है कोर्स, हॉर्टिकल्चर का है, प्रिसाइज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का है, ये फ्रांस जिसका भी हम देख रहे हैं दूसरी साइड से। फूड इकोनॉमिक्स का है 69, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 69, और देन एग्री फूड सस्टेनेबिलिटी पाविया वाले। तो ये 69 वाले जो हैं ये एग्रीकल्चर से हैं। अगर हम 70 को देखें तो ये फूड वाले कोर्सेज हैं। ये देखें फूड साइंस, LM60 फूड इकोनॉमिक्स, फूड प्रोसेसिंग, LM70 सॉरी नॉट 60, अगेन इटालियन फूड एंड वाइन, मेडिटेरियन फूड साइंस। तो जो फूड साइंस के कोर्सेज हैं उनकी क्लास जो है ना, ये इनको क्लास बोलते हैं इटालियन एजुकेशन सिस्टम में। तो ये है सेम, हम ये देख लिया हमने रूरल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ट्रॉपिकल रूरल डेवलपमेंट, ये इनकी वेबसाइट आ गई है। ठीक है, आपने यहाँ से आपने देख लेना इनका प्रोग्राम, और इनके सारा जितनी भी इनकी देख सकते हैं आप, पीपल यहाँ लोग हैं, कोर्सेज ऑफ स्टडी प्लान, ये इनके हैं, ओन फार्म इरिगेशन, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, ट्रॉपिकल ट्रीज, क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्मिंग सिस्टम। तो ये सारे फर्स्ट ईयर के हैं। देन सेकंड ईयर, देन आप आगे चले जाते हैं स्पेसिफिकेशन में, तो ये इनकी सारी डिटेल आपने देख लेनी है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको अपना कोर्स मिल गया, कोर्स में आपने देख लेना है कि एप्लीकेशन की डेट्स क्या क्या चल रही हैं, इसी पेज पे सारी होंगी। ग्रेजुएशन थीसिस, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, यहाँ से आपने इरास्मस पे होता है डेफिनेटली सारी चीज़ें, मास्टर प्रोग्राम, ऑफिसेज, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैलेंडर एंड टाइम टेबल पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसका क्या कैलेंडर चल रहा है, तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देन यू कैन, आपकी सिलेक्शन होगी, देन यू कैन गो फॉर एप्लीकेशन। तो हर यूनिवर्सिटी का नॉर्मली अपना एक पोर्टल होता है जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। अब अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की बात करें तो उसका नाम है यूनिमी, यूनिमी, ये आ गई। इसको भी मैं यहाँ से ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश में, एंड देन स्टडी पे जाते हैं। स्टडी की बजाय हम एजुकेशन पे जाते हैं, और यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो है ना ये है। अब ये चीज़ जो है ना ये तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। लैंग्वेज आप इंग्लिश लगाएं, और यहाँ पर आप क्लिक कर दें सर्च पे, तो 28 प्रोग्राम आपके पास आ रहे हैं इंग्लिश के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं PBG वाले। देन बायोटेक्नोलॉजी आ गई, डेटा साइंस आ गया, ये सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ से भी आप अपना पसंद का कोर्स कोई भी उठा लें जो भी आपका है। प्लांट साइंसेज आ गया, जिस तरह मैंने आपको बताया था, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हम ऑलरेडी इसको देख रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, एक कोर्स था यहाँ एग्रीकल्चर का,
सॉरी इटालियन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो हाफ इंग्लिश में हाफ इटालियन में हम उस पर नहीं देखते, तो हम प्लांट साइंसेस के ही कोर्स हम देखते हैं जो हमने पहले ओपन किया था। ये रहा, ये सारी डिटेल आप यहाँ से पढ़ेंगे, कोर्स लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, फीस, स्कॉलरशिप। अब ये देखें, जो फीस की बात हो रही थी कि इनकम बेस्ड, ईजे बेस्ड होता है। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स जो हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप बाई फाइनेंशियल मेरिट और सारे उनके बेनिफिट्स, ये सारी डिटेल्स हैं। फी एग्जाम्पशंस, फाइनेंशियल सपोर्ट्स, सारी चीज़ें। फ़ी आपको एंड पे करना पड़ती है अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता तो। देन ये आपका स्टडी प्लान है, इंग्लिश इंग्लिश में फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर भी सारा इंग्लिश में है। आपके पास ऑप्शन होती है कि आप पढ़ लें। एडमिशंस एंड इनरोलमेंट, एडमिशन एप्लीकेशन, ये देखें, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ इसके पेज के ऊपर मौजूद है। मैं एडमिशन एप्लीकेशन पे अप्लाई करता हूँ, ये मुझे डायरेक्ट पोर्टल पे ले जाता है। आप यहाँ पोर्टल पे जाके इसको, अगेन ये इटालियन में है, तो आप इसको यहाँ से ट्रांसलेट टू इंग्लिश करके तो ये सारा कर सकते हैं। आप पहले अपनी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन। ये सारा हो गया एडमिशन का। आपको कोर्स कैसे ढूंढना है, कैसे अप्लाई करना है। एडमिशन के लिए आपको अगेन वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट ले लें, वही एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब आप ये सब कर लेंगे देन वी विल गो फॉर स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप आपने देखना है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप में इटली को एक और चीज़ नोट करने वाली है, ये नोट कर लेंगे, कोई बताता नहीं है। यहाँ पर स्कॉलरशिप को बोलते हैं डी, जो रीजनल स्कॉलरशिप होता है उसको बोलते हैं DSU, ठीक है, DSU। अब DSU का मतलब होता है कि Diritto allo Studio di Università, के राइट टू हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अगर हम देखें DSU, फर्ज किया हम ले रहे हैं एडमिशन, या इससे पहले हम देखते हैं रीजन्स ऑफ इटली। तो ये हमारे पास रीजन आ गए इटली के, यहाँ से कोई भी मैप ओपन कर लें। ये रहा जी, ये रीजन है वेनेतो, एमिलिया रोमानिया। अब मैं इस वक्त हूँ एमिलिया रोमानिया में, उसके बाद टस्कनी है, ये उम्ब्रिया, ये लोम्बार्दिया, मिलान जो है वो लोम्बार्दी में आता है। वेनस और पादवा जो है वो वेनेतो में आती हैं, टस्कनी में आती हैं, पिज़ा और फ्लोरेंस लाजियो में आती हैं, रोम और नेपल्स। तो ये इस तरह के हैं। तो आपने क्या करना है, आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो जाए तो आपने सिंपली उसका स्कॉलरशिप कैसे देखना है। ये हो गया। आप फ़र्ज़ किया आपका स्कॉलरशिप हो जाता है DSU लाजियो में या नेपल में या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, किसी देखेंगे DSU लाजियो। तो लाजियो वालों का जो DSU है उसका नाम है लाजियो डिस्को। ये रहा आपका लाजियो डिस्को, ये लाजियो रीजन। अब लाजियो रीजन में जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नापोली नेपल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ टॉर्वेजेटा रोम, ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये आप सारी यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका हो गया। और इसके बाद आप यहाँ से जाके यहाँ पे लॉगिन करके जब एप्लीकेशंस ओपन होंगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। सर्विसेज, आवर सर्विसेज योर अपॉर्चुनिटी, केटरिंग आपको मैंने बताया ये खाने पीने का देते हैं। इंटरनेशनल मोबिलिटी, कि आप यहाँ पे रहते हुए पूरे यूरोप में इरास्मस पे जा सकते हैं, इवन UK में भी जा सकते हैं आप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी जा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी में हैं। उसके बाद आपको कूपन्स भी मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं, रिहाइश, खाने का अकोमोडेशन, सारी चीज़ें हैं। अब ये देखें, ये कॉल फॉर राइट टू स्टडी, अब ये है, और कॉल फॉर हाउसिंग ग्रांट, तो ये पिछले साल का है, अभी आ रहा है 2023-24, तो अभी ओपन नहीं हुआ। तो इसलिए आपने जिस भी जगह पे आपने एडमिशन लेना है, पिछले साल की इस कॉल को डाउनलोड करके आपने पढ़ लेना है। ये रहा जी डेडलाइंस, 20 जुलाई की पिछले साल की डेडलाइन थी, और ईज़े आपने इनको देना है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं पहले से 26 जुलाई तक। और ये सारी डेडलाइन अचीवमेंट ऑफ मेरिट सेकंड, मतलब ये सारी इनकी डेडलाइन है। कॉल आपने डाउनलोड करके इसको पढ़ लेनी है। ये रहा जी,
Dritto al studio bando 22-23, खैर ये इटालियन में है, car studenti। तो ये सारी आपने यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। इसको अगर आप इटालियन में है तो इसको सिंपली आप ये देखें गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को आप इसको डाउनलोड करें, यहाँ से इसको ब्रोज डॉक्यूमेंट करके ट्रांसलेट करें, सिंपली ये तरीका है। तो इस तरह आप स्कॉलरशिप, अगर आपका बोलोनिया में होता है तो आप लिखें DSU बोलोनिया, तो ये आ जाएगी। और ये इनकी DSU है, Diritto allo Studio Università, तो इसका नाम है एर्गो है इमिलिया रोमानिया से, और गवर्नमेंट इमिलिया रोमानिया गवर्नमेंट। तो सेम उनकी भी इसी तरह की वेबसाइट है। और यहाँ से बोर्सा दी स्टूडियो बोलते हैं स्कॉलरशिप को, आप यहाँ से स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं और यहाँ से जाके आप पिछले साल की इंग्लिश में डाउनलोड करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ये आप पे है, अब मैंने आपको सिर्फ बता दिया काम कैसे करना है, अब आप पे है कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, पढ़ना है, और आपने फिर सारा काम जो भी होगा करना है। ठीक है, अब मुझे आप 2 मिनट दें, मेरे पास चैट में काफ़ी मैसेज आ गए हैं तो मैं वो देख लूँ क्या है। What's the required document for regional scholarship? Kindly continue next please. Scan English proficiency letter. हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है ना वो यूनिवर्सिटी का काफ़ी जगहों पे वो मीट करता है, लेकिन पिछले साल काफ़ी कोर्सेज ने जो है ना उसको नहीं माना, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं माना, तो आइट्स उनको देना पड़ा। तो थोड़ी सी देर मुझे दें, मैं ये इनका जल्दी जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स कर दूँ। MS एग्रोनॉमी के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन सा हो सकता है? MS एग्रोनॉमी के लिए पादुआ यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, और बोलोनिया यूनिवर्सिटी में जो मैं कर रहा हूँ प्रिसाइज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये दोनों सबसे बेस्ट कोर्सेज हैं एग्रोनॉमी के लिए। और एग्री मिलानो वाला जो कोर्स है ना, वो भी है। या आप इस तरह कर सकते हैं कि एक साल किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, दूसरा साल मिलान में कर लें, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। 2 universities of Pavia and University of Florence and got both university which is better, Florence and Pavia? Umar Tariq, I guess Florence is better than Pavia, but it depends upon your course. तो ये kindly give a quick, हमजा बिन सज्जाद तो सही है, हम वही देख रहे हैं। Is this video saved on any social platform? I don't know. Yes. शेयर द लिंक, ओके, लिंक अपलोड होगी, ठीक है। मास्टर्स इन सॉइल साइंस इन इटली, अगेन मिस्टीरियस। आप अपना नाम लिखें, आप सबसे पहले ये किया करें, नाम लिख करें, पता चले कौन है। तो मास्टर्स इन सॉइल साइंस जो है ना, अगेन वो जो आप मास्टर्स इन सॉइल साइंस कोई नहीं है इधर, लेकिन आपको एग्रीकल्चर में या रिसोर्स मैनेजमेंट में मिलेगा मास्टर्स, और रिसोर्स मैनेजमेंट में आप किसी सॉइल साइंस के टीचर के साथ थीसिस करके तो सॉइल साइंस पे काम कर सकते हैं। ये बड़ी पहले की बात है, हम ना प्रूफ ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग, इसमें ये है कि आपको टिकट, एक डमी टिकट बनाकर शो करनी होती है, और लॉजिंग के लिए आप उनको दिखा सकते हैं Airbnb या booking.com से। नीड फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप? नो, देयर इज नो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर यू, सॉरी टू से। हम फुल्ली फंडेड की ही बात कर रहे हैं तब से लेके, और अगेन आप जो है ना वो उधर ही फंसे हुए हो जहाँ से शुरू किया था, तो दिस इज नॉट गुड। अच्छा जी, अभी हमने देख लिया मास्टर्स का स्कॉलरशिप, देख लिया हमने मेरिट बेस्ड। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेरिट बेस्ड पे जल्दी जल्दी, क्योंकि इनकम बेस्ड जो है वो आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। तीन मुख्तलिफ रीजन्स का, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको DSU बता दिया, दिखा दिया है। कोर्सेज भी आपके बता दिए हैं, कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वो जब आप रिक्वायरमेंट पे जाते हो, यहाँ पर जाओगे, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, हर जगह पे आपने ये चीज़ लाजमी पढ़नी है। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में आपने देख लेना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। रीड द कॉल को आप ओपन करोगे, रीड करो, पढ़ो। एडमिशन यहाँ भी ओपन है, 15/3 से ओपन है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में। अच्छा, उसके बाद हमने ये देख लिया, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो ये देखो, हम लिखते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। सही है। तो
यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, ये देखें, ये क्या आ गया, यूक्रेनियन आ गया। इनके भी पोलीमी जो है ये यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्नो दी मिलानो है, ठीक है। प्लाटिनियम स्कॉलरशिप्स, आप गोल्ड स्कॉलरशिप, सिल्वर, ये रहे ये। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है पॉलिटेक्नो दी मिलानो है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान नहीं है। तो आप अगर आप इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो 2023-24 की 1 सितंबर से। और ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की कॉल ओपन है इस वक्त पोलीमी में। और ये रहा यहाँ पे नीड बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड। तो आपने यहाँ से अपना जाके 750 नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड। तो ये रहा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान 160 मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है। अगर आपकी बहुत अच्छी CGPA है, आप ऑटोमेटिकली कंफर्म फर्स्ट टाइम आपको 30 है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा यहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लेना, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अगर हम देखें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, हम देख लेते हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर अवेलेबल है, 3-4 कोर्सेज हैं, तो इसलिए मैं पादुआ ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसको आप ओपन कर लें, इसको आप ओपन कर लें। तो ये जो पादुआ यूनिवर्सिटी में 3-4 किस्म के स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड होते हैं। पादुआ इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, इसकी आप पढ़ सकते हैं। 53 स्कॉलरशिप है, हाईली टैलेंटेड प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू बाय बैचलर मास्टर्स डिग्री। और उसके बाद फ़ी वेवर्स के स्कॉलरशिप ये देते हैं। 100 फुल ट्यूशन फ़ी। अगर आप यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो आप रीजनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके स्टाइपेंड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर होता है डिपार्टमेंटल। तो हर डिपार्टमेंट जो है ना अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है। अगर आप एग्रोनॉमी से आ रहे हैं, एग्रोनॉमी वालों के लिए क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी वाले यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस तरह के इंसर्ट योर टैलेंट, इटालियन मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में नहीं है, तो इस पे मैं नहीं गया, दैट्स वाई। अगर आप डिपार्टमेंट की देखें, एग्रोनॉमी का यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ये रहा एग्रीकल्चर। तो 2 स्कॉलरशिप ये दे रहे हैं। ये अब आपने खुद देखना है, ढूंढना है कि आपको कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। मायता नज़ीर का क्वेश्चन है, आई हैव सीन सम ऑनलाइन कोर्सेज रिगार्डिंग आइल्स ऑन कोर्सेरा, आर दे एक्सेप्टेबल? कोर्सेज एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने आइल्स का टेस्ट देना है, वो एक्सेप्टेबल होगा अगर आपके बैंड्स अच्छे आते हैं। तो अगर आप भी 5 या 5.5 लेकर आएंगे बैंड, तो दैट्स नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट। कि आप एक मास्टर्स लेवल के होकर तो आप इतना थोड़ा स्कोर ले रहे हैं, वो अच्छा नहीं होता, अच्छा ही नहीं लगता। आप किसी को बता ही नहीं पाते यार, अगला बंदा यही कहता है कि यार 16 साल पढ़ के भी आपने 5.5 लिया, इतना नहीं होना चाहिए। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई। स्कॉलरशिप हमने देख लिया, हमने देख लिया कि मेरिट बेस्ड कैसे होता है, रीजनल बेस्ड कैसे होता है, कोर्स कैसे ढूंढना है हमने ये भी देख लिया, अप्लाई कैसे करना है हमने ये भी देख लिया। टाइम फ्रेम इस वक्त बहुत तकरीबन सभी में ओपन है, स्कॉलरशिप और एडमिशन दोनों ओपन है, तो आप अप्लाई करें। एक चीज़ और रह गई, और वो हम थोड़ा सा देखते हैं PhD को। तो जो लोग अभी इस वक्त, आई डोंट नो आप लोग मास्टर्स के किस सेमेस्टर में हैं। अगर तो आप मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में हैं तो आप स्कॉलरशिप, ये मास्टर्स को भूल जाएं, आप PhD पे फोकस करें। और PhD के लिए आपको सिंपली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये रहा जी, हम पादुआ में हैं तो हम यूनिपीडी पे ही रहते हैं। यहाँ से आपने इसको इंग्लिश कर लें, मेन्यू देख लें, और यहाँ पर आपने देखना है रिसर्च। रिसर्च में आपको पूरे इटली में तकरीबन PhD रिसर्च में आपको मिलेगी। PhD प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा PhD प्रोग्राम कॉल एंड एडमिशन्स, या आप यहाँ पे क्लिक करें PhD प्रोग्राम्स, आपको पता चलेगा कि कितने PhD प्रोग्राम हैं। एनिमल एंड फूड साइंस, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी,
क्लिनिकल क्रॉप साइंस, ये रहा जी हमारा एग्रीकल्चर वालों का क्रॉप साइंस, ठीक है। उसके बाद ये रहा जियो साइंसेज। यहाँ भी अगर आप जियोलॉजी में अच्छे हैं, अगर आप मॉडलिंग कर सकते हैं, GIS कर सकते हैं, तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अप्लाई कर लेना, देख लेना है। यहाँ भी आप कर सकते हैं लैंड एंड एनवायरमेंटल रिसोर्स में, यहाँ भी अब एग्रीकल्चर वाले एडजस्ट हो जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ का हो गया। सेम हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का एजुकेशन की बजाय हम रिसर्च में जाते हैं, सॉरी रिसर्च में जाते हैं। रिसर्च में जाकर हम ये देखें, ये लिखा हुआ है डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम्स। ये अब उन लोगों के लिए है जो PhD पे फोकस करना चाहते हैं। डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे आप देखें रिसर्च अब PhD प्रोग्राम, आप PhD प्रोग्राम यहाँ से सर्च करें आराम से। एरिया एग्रीकल्चर, बेसिकली जब आप इंग्लिश में करते हैं तो एग्रीकल्चर तकरीबन शुरू में ही आ जाता है। नहीं होता, अब यहाँ से लगा लें, इसको रहने दें, हम भी नहीं लगाते, लैंग्वेज भी नहीं लगाते, क्योंकि तकरीबन ये सारे इंग्लिश में ही है, तो एग्रीकल्चर ऊपर ही बैठा हुआ है। यहाँ पे आप ओपन करेंगे इसको। ओपन करने के बाद आप सिंपली रिसर्च लाइंस में जाएंगे। आप ये आपने हर जगह पे जहाँ पे भी अप्लाई करना है, ये आपने ढूंढना है। अब देखें, ये टॉपिक्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, इनोवेटिव केमिकल एंड फिजिकल, और अभी नीचे एग्रो हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, आर्कियोलॉजी, एग्रोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप मॉडल। तो ये सारी फोकस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपने देख लेनी है। उसके बाद ये लिखा हुआ है रीड द कॉल। आप इसको कॉल को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपकी सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, क्राइटेरिया, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब हमारा चूंकि एग्रीकल्चर था, तो हम एग्रीकल्चर का देख लेते हैं। कंट्रोल F किया, एग्री मारा, 15 पेज पे है जी। अच्छा, एग्रीकल्चर को एग्रीकल्तूरा भी बोलते हैं, ये मतलब इटालियन में, ठीक है। ये रहा जी एग्रीकल्चर में इसकी फिनोटाइप, जीनोटाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका सबसे पहले ही आपका आ गया है। बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ये भी आपका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन आपका प्लांट बायोलॉजी होना चाहिए, यहाँ से। अच्छा, रिसर्च टॉपिक्स, तो रिसर्च टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च लाइंस दिखाई थी, वो थी। पिछले साल इनके पास 7 सीटें थी, स्कॉलरशिप पे थी सारी सीटें, आपने जस्ट एडमिशन लेना है। स्कॉलरशिप का ये रिक्वायरमेंट आपकी आ गई कि आप इन क्लासेस से हों, LM1, 2, 6, 7, ठीक है। ये रहा LM69 एग्रीकल्चर साइंस, LM70 फूड साइंस, और ये आ गया क्वालिफिकेशन असेसमेंट। यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन 9 सितंबर को होगी, इंटरव्यू होंगे 15 सितंबर को। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। तो इस तरह जो है आप अपना PhD भी इस तरह ढूंढ सकते हैं। तो आज चूँकि हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे PhD पे, तो दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करूँगा PhD पे। मास्टर्स का चूँकि हमने तकरीबन सारी चीज़ें अब देख ली हैं। लेट्स गो बैक। अच्छा, लोगों को सुनने की बजाय ना इस चीज़ की पड़ी होती है ज़्यादा कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग हम भी जब होते थे तो हम भी कहते रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन हमने भी कभी नहीं देखी रिकॉर्डिंग। हम देखते ही नहीं हैं भाई, बाद में बात जो सीधी सी है वो यही है। अभी 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 okay, then again I'm sharing screen just for 5 minutes and then we will see कि अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो। ये हमने सारा देख लिया, एप्लीकेशन कैसे करनी है, कैसे ढूंढना है कोर्स, कैसे स्कॉलरशिप देखना है, रीजनल स्कॉलरशिप कैसे देखना है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। तो अब हम, उम्मीद है कि आप सबको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी।
चीज़ें जो हैं ऑफर्ड बाय ये सारी, जिस तरह हमने पादवा में देखा, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सारा कर रहा है नीड बेस। जब आप कॉल ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको ट्रांसलेट करके, अगर तो इंग्लिश में अवेलेबल है, काफ़ी रीजन करते हैं अपलोड तो ठीक है, नहीं करते तो आप उसको गूगल से डाउनलोड करके उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे। देन पीएचडी के लिए और वैसे भी एक इम्पोर्टेंट करिकुलम जो है, इसके अंदर सीवी जो है वो ये होनी चाहिए कि अच्छा जी, सीवी में अब आपका अच्छा जो है ना टेम्पलेट होना चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए, एजुकेशन आपने ऊपर रखनी है, देन आप अपना रिसर्च रखेंगे अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप रिसर्च, पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर रेफरेंस, ये जो 6 चीज़ें हैं ना, 5-6 चीज़ें, ये लाजमी तौर पर आपकी सीवी में होनी चाहिए। तो आप इसका भी बेसिक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ये पुरानी हो गई है, अब सिस्टम थोड़ा सा अपडेट हो गया। और पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है, तो रिसर्च प्रपोजल के लिए आपको ये चीज़ें आपके रिसर्च प्रपोजल में लाजमी होनी चाहिए। ये हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है ऊपर नीचे। स्टेट ऑफ आर्ट के आप काम क्या करना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका रिसर्च क्वेश्चन, जिस तरह भी आपने साइनॉप्सिस लिखा है या लिखना होगा। देन इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप बैकग्राउंड में, देन आप बैकग्राउंड नॉलेज देंगे उनको, मेथडोलॉजी बताएंगे, टाइम फ्रेम बताएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आप फ्यूचर आउटकम उनको बताएंगे, एंड देन यू विल गिव रेफरेंस। तो यही आपकी होनी चाहिए चीज़ें। और इम्पोर्टेंट जो है वो नॉवेल्टी कितनी है आपकी चीज़ों में, कितना नई चीज़ें आपने की हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप 2 से 3 साल में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी रेलिवेंसी है, ये सारी चीज़ें अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने लिखी होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपने पीएचडी पे जब आप लगाएं तो वहाँ देख लीजिएगा। एंड देन द लास्ट थिंग, मेरा ख्याल है कि हमने ये सब कुछ देख लिया होगा, तो ये मैं भी अभी आपके सामने रखता हूँ मैं। तो अब हम एक और छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं इस सारे ओवरव्यू को लेकर। आई थिंक यहाँ से कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रही कि जो हमने ना की हो। हाँ, सब कुछ हो गया। नाउ वी कैन डू अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। ओ, अवेलेबल हो सारे? जी जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जी जी बोलें, आपकी आवाज़ बीच में रह गई। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो इनिशियली जो हम स्कॉलरशिप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, क्या आया कि इधर भी फ्री है यूनिवर्सिटी जहाँ पर एप्लीकेशन की फीस नहीं होती, जैसे चाइना में कुछ है यूनिवर्सिटी जहाँ पर एप्लीकेशन की स्टार्ट में फीस नहीं यार होती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं, लेकिन जहाँ पे फ़ी है वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप फ़ी वाली यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपका जो जिसे हम बोलते हैं ना कंपटीशन, वो कम हो जाता है। ठीक है, आपका कंपटीशन इस तरह कम हो जाता है कि जिस तरह अभी आप सोच रहे हो ना फ्री वाली यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, तो इसी तरह और बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं। अभी फ़र्ज़ किया पादुआ यूनिवर्सिटी जो हमने देखी है, तो पादुआ यूनिवर्सिटी में 30 यूरो फीस है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 के करीब बनते हैं। मिलान यूनिवर्सिटी में भी आई गेस 30 है या 50 है, कुछ कोर्सेज में उनके 50 है, कुछ कोर्सेज में 30 है। तो अगर तो आपकी सीजीपीए अच्छी है, मतलब आप 3.3 3.5 तक आपकी सीजीपीए है, देन यू शुड गो विद विद यूनिवर्सिटी विद एप्लीकेशन फ़ी। आप फ्री भी करें, आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, और 2 आप रख लें पेड रख लें, और बाकी 3-4 आप फ्री रख लें, तो इट्स अप टू यू। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं फ़ीस की तरफ ना, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो फिर थोड़ा-सा एप्लीकेशन उन्होंने अपना भी हिसाब देखना होता है।
अच्छा जी, little review on motivational letter. Mostly university requires B2 level and 6 to is B2 level. जी सही है उमर तारिक साहब। अच्छा जी, मोटिवेशनल लेटर। अब मोटिवेशनल लेटर में हम उनको क्या बताते हैं? उनको बेसिकली हम यही बताते हैं कि हमारे पास जो है ना, हमने किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है। देन हम उनको बताते हैं कि हमारा पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली दो फॉर्मेट चलते हैं मोटिवेशनल लेटर के। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट दो फॉर्मेट नॉर्मली चलते हैं। एक जो होता है वो 3 पैराग्राफ्स का होता है, और एक जो है 5 पैराग्राफ्स का है। अब जो 3 पैराग्राफ वाला है, अब जो 3 पैराग्राफ वाला है ना, उसके अंदर आप पहले पैराग्राफ में अपनी मोटिवेशन, थोड़ा-सा बैकग्राउंड, अपनी मोटिवेशन प्लस बैकग्राउंड पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप आपका फ्यूचर प्लान जो भी होगा, मोटिवेशन और फ्यूचर प्लान, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप उसको जो है ना कंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया 3 वाला। तो जहाँ पर लिमिट होती है कुछ के 500 वर्ड्स का होता है या 600 वर्ड्स, तो वो ये वाला चल जाता है। तो अगर उन्होंने 1000-1200 की लिमिट रखी हुई है, तो फिर आपको जाना चाहिए 5 पैराग्राफ्स में। उसमें ये होता है कि आप अपना पहला पैराग्राफ अपनी मोटिवेशन का दे लेते हो कि ये मेरी मोटिवेशन है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास एक पड़ा हो मोटिवेशनल लेटर, सो आई कैन शो यू। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, उसके अंदर दूसरा पैराग्राफ ये होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फ़र्ज़ किया आप अप्लाई कर रहे हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए मिलान यूनिवर्सिटी में, तो आप पहले पैराग्राफ में लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस मोटिवेशनल लेटर टू एक्सप्रेस माय मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ओके, एक पैराग्राफ आपका तकरीबन 2 से ढाई लाइनों का पूरा हो गया। सेकंड में पैराग्राफ में आप में लिखोगे कि आपने क्या पढ़ा, आपका बैकग्राउंड क्या है, बैचलर्स क्या है आपका, मास्टर्स क्या है आपका, व्हाट्सएवर जो भी है। ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। और थर्ड पैराग्राफ में देन आप आ जाओगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप अप्लाई कर रहे हो या किस चीज़ के लिए जा रहे हो, तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ में आ जाएगा। हम्म। मुझे आप 1 मिनट दें बस, मेरे पास ना इरास्मस। नहीं, ये नहीं। खैर हाँ, मेरे पास ये बल्कि एक छोटा-सा है, इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल थोड़ा-सा चीज़ें पूछी हुई थी, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई बड़ी हैवी मोटिवेशनल लेटर नहीं है, लेकिन ये जो है ना लिखा हुआ था, स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इनको एक छोटा-सा प्रोजेक्ट था ये, कुछ दिनों का, तो उसके लिए उन्होंने एक मोटिवेशनल लेटर माँग लिया। तो मेरी इसमें सिलेक्शन हो गई थी और सब कुछ हुआ, तो मैंने इसको सिर्फ़ लिखा कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माय प्रोफाउंड फॉर द एरास्मस प्लस ब्लेंडेड इंटेंसिव एक्सचेंज प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन, पुर्तगाल। तो ये एक चीज़ हो गई, आपने लिख लो माय कोर मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर दिस प्रॉब्लम इज़ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड वी कैन नॉट, ये मोटिवेशन एक आ गई। तो उसके बाद फिर ये मैंने इसको 2 पैराग्राफ में कर दिया। तो देन अगेन उसको एंड पे मैंने अपनी चीज़ें बता दी, क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी और तरह से रखी हुई थी। तो अब इसके अंदर जो है, क्योंकि इनको थोड़ी-सी चीज़ें इन्होंने ये चाहिए थी कि बंदे के पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप आर और पाइथन को लेकर चलना चाहते हो, बाकी डेटा विजुअलाइज़ेशन।
क्योंकि वो मैं कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ हल्का फुल्का, तो मैंने इसके अंदर डाल दी। तो इस तरह का एक आप 3 या 5 पैराग्राफ, बेहतर है कि आप 5 पैराग्राफ वाला बनाएं। आपका पहला पैराग्राफ इस तरह का हो जाए, सेकेंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, और थर्डली आप थर्डली आप अपना चीज़ें बता देंगे। तो ये आपकी जनरल चीज़ें आ गई। Let's please guide some hints about IELTS, any useful website or books. Bro, YouTube is the best teacher. बुक से IELTS नहीं होता। आप YouTube से देखें, आप लिसनिंग किया करें YouTube से, और रीडिंग जो है ना, आप पास पेपर्स पढ़ें जो कि बाकायदा मतलब प्रिंट करवा के उनको सामने रखें, ताकि जब आप कल को बैठो तो आप बिल्कुल उसी तरह टाइम मैनेज करें जिस तरह वो भाई कह रहे थे कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। गाइड मी हाउ टू राइट अ स्टडी प्लान। मैं आई कैन नॉट गाइड यू ब्रो मोहम्मद हमाद। ये जो है ना, स्टडी प्लान एक तो ज़रूरत नहीं होती, और ये जो है ना आपकी पर्सनल जिसे कहते हैं ना कि मेहनत पे होता है इस तरह का। मैं आपको स्टडी प्लान नहीं दे सकता किसी भी चीज़ का, मुझे नहीं पता आप आगे चलकर क्या पढ़ना चाहते हो, तो देन हाउ आई कैन गिव यू स्टडी प्लान। नॉर्मली इटली में मास्टर्स के लिए स्टडी प्लान नहीं चाहिए होता। उसके बाद है सर, प्री इनरोलमेंट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। प्री इनरोलमेंट पे वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को भेजे थे, पासपोर्ट, CV, और ईमेल, यूनिवर्सिटी की ईमेल आती है जो आपको कि आपका एडमिशन हो गया। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। अब्दुल्ला ने मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए तकरीबन 2 मिलियन की, और जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे तो एटलीस्ट पिछले 2.5 से 3 महीने की वो आपकी ट्रांजैक्शंस रिक्वायर करते हैं कि आपके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस रही हैं और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। कैन वी गेट एडमिशन इवन ऑफ आवर ग्रेजुएशन फर्दर एडमिशन। जाफरी साहब, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगेन आप उनकी कॉल ऑफ एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने लिखा होता है कि आपको 10 अक्टूबर तक डिग्री अपनी जमा करवानी है। तो अगर तो आप 10 अक्टूबर तक अपनी डिग्री जमा करवा सकते हैं उनको, तो जो है आप कर लें, वरना आप थोड़ा वेट कर लें फिर। आइल्स के मायदा का दोबारा क्वेश्चन आया। मायदा, आइल्स के जो कोर्सेज आप बात कर रही हैं ना, वो कोर्स आपकी आइल्स की तैयारी के लिए होते हैं, वो एज ए आइल्स की जगह पर एक्सेप्टेबल नहीं होते। ठीक है, आपने तैयारी करनी है तो आप कोर्सेरा से बेशक तैयारी करें, और कोई इशू नहीं है। आप तैयारी यूट्यूब से भी कर सकते हैं। आप तैयारी पिछले साल के पेपर्स डाउनलोड करके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं स्पेशली जो आपकी रीडिंग है ना उसके, वो आप कर सकते हैं। बाकी तैयारी के लिए तो आपको कहीं से भी आप कर सकती हैं, लेकिन वो वाले कोर्सेज उनके सर्टिफिकेट्स जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप वो सर्टिफिकेट दे के, तो वो तो कोई बंदा भी पास कर सकता है। भाई आप जो है ना एटलीस्ट 3 महीने पहले से बैंक स्टेटमेंट को अपनी को मेंटेन करना शुरू कर दो। जब आपकी प्री इनरोलमेंट हो जाए ना, जब आपकी प्री इनरोलमेंट एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाए, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना उसको मेंटेन करना शुरू कर दो, उसमें ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दो इन आउट की, ताकि अगले 2 से 3 महीने में अगर आप, जब तक आपका वीज़ा कॉल आती है आपको, तो आपके पास ठीक ठाक ट्रांजैक्शन हो, पता चले कि भाई आपका अकाउंट सही है और आप लेजिटिमेट हैं। चलें जी, आई गेस क्वेश्चन आंसर हो गए हैं सारे, और टाइम भी हमारा पूरा हो गया है 1.5 घंटे का, तो आई एम ओके विद एवरीथिंग, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी कोई बोल रहा था बीच में? कंक्लूड कर दो फिर, एंड कर देख दें। लें अगर आप, हाँ देख लें अगर आप जो हैं
चीजें हो गई हैं सर, थैंक यू सो मच। वन मोर क्वेश्चन, भाई मोफा से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं? मोफा से आपने भाई टेस्ट करवाने हैं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस अपना FRC, और आप अपना जो FBR का सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे वो भी करवा लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो करवा लेना, ताकि कल को जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो तो आपको दोबारा मोफा से टेस्टेशन करवानी पड़े। Thank you all for joining us today. We hope you find this scholarship webinar helpful and informative. If you have any additional questions or feedback, please feel free to reach out to us. Have a great day and good luck for your scholarship application. Thank you. Thanks a Okay, lot, sir. okay, Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.